हाउसिंग ऑफिसर ने कहा इंक्वायरी उसके बाद होंगे आपके पट्टे कैंसिल। आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। आज आपको आपका फ्लैट जो हुकूमत ने, पिछली हुकूमत केसीआर की सरकार ने जो डबल बेडरूम मकान बनाकर एक गरीब आवाम का ख्वाब को सच करने का जो काम ने वो हुकूमत ने किया था, पिछली हुकूमत ने, अब ये नई हुकूमत इंक्वायरी के नाम पे गरीब आवाम को डराने का काम ये 2 साल से कर रही है। आखिरकार क्यों? तो आप सब जो है इस न्यूज को मुकम्मल सुने। आगे हम आपको इसके ऑफिसर की धमकी समझो या ये ऑफिसर की वार्निंग समझो या गरीब आवाम को डराना समझो, गरीब आवाम को समझते हैं ये बुजदिल समझते हैं या बेवकूफ समझते हैं या गरीब को फकीर समझते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसरों को मालूम है या नहीं। ये गरीब आदमी यानी ये गरीब और मिडिल क्लास आदमी की वजह से ही इनकी तनख्वाह निकलती है। ये गरीब आवाम के और सारी आवाम के सर्वेंट हैं, ये हमारे नौकर। मैं आपसे पूछता हूं हर वो गरीब और मिडिल क्लास आदमी से कि आपके खरीदे हुए सौदे पे जो टैक्स दिया जाता है उसी टैक्स से सारे सरकारी नौकर पलते हैं, तनख्वाह मिलती है। आखिरकार यही गरीब को डराना धमकाना आखिर ये कहां तक दुरुस्त है? ये वहां पर आए, ये केसीआर फेज 2 यानी केसीआर नगर 2 BHK हाउसिंग डिग्निटी सोसाइटी में आकर आप कुछ लोगों को ऐसे ही जमा कर लेते हैं नो, और कुछ जो है चमचागिरी, कुछ दलाली करने वाले भी साथ हो जाते और होकर इनके हाँ में हाँ, इनके नाम में ना मिलाने वाले ऐसे लोग जो अपनी बिल्डिंग को नुकसानदेह हैं। आइए आखिर ये हाउसिंग ऑफिसर 2 साल से गरीब आवाम को क्यों डराने का काम कर रहे हैं, ये तेलुगु में बोलेंगे, उसके बाद मैं आपको हिंदी में पूरी तफसील बोलूंगा। ఆకుపై చేయకపోతే మళ్ళీ గురువారం నుంచి మళ్ళీ వస్తాము. అలాగప్పుడు ఏం చేయాలనేది మేము క్యాన్సిల్ చేసి ఇప్పుడు మన పటాన్చెరు కాన్స్టిట్యున్సీలో దాదాపు 22,443 మంది లబ్ధిదారులు స్థలాలు లేక ఇంటి కోసం దరఖాస్తు పెట్టుకొని ఉన్నారు. వీళ్లకు పద్ధతి ప్రకారం అలాట్ చేసి వాళ్ళనే ఇక్కడ ఉండేటట్టుగా చర్యలు చేపట్టబడుతుంది. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, ఎట్టి పరిస్థితులలో మార్చి తర్వాత అంటే ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్, వచ్చే వారం కొంతమంది ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు రిపోర్ట్ చేయలేదో వాళ్ళందరినీ తీసేస్తాం. దాంట్లో మొమాటం లేదు. ఇప్పటిదాకా మేము 2 సంవత్సరాలు అయింది ఇచ్చి, ఇప్పటివరకు రిపోర్ట్ చేయలేదు. వాళ్ళని అయితే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం, అలా తీసేస్తాం, కొత్త వాళ్ళని పెడతాం. అర్హులైన వాళ్ళందరికీ ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఉంచడమే ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. దయచేసి గమనించండి. మేము ఎవరికి ఎగనిస్ట్ కాదు, ఎవరికి ప్రో కాదు. బీద లబ్ధిదారులను డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. దానికోసమే మేము ఈ ప్రయత్నము. మీరందరూ సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మీరంతా ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారంటే కూడా లాస్ట్ టైం మన పాత గవర్నమెంట్లో అంటే ఒక్క నిమిషం సార్, అంటే నా మాట కంప్లీట్ అవుతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు వంచినప్పుడు కానీ వైఎస్ గారు వంచినప్పుడు కానీ ఎల్లమ్మ బండలు అక్కడక్కడ పంచిండ్రు. సో వాళ్ళు ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు రాకుండా అమ్ముకున్నారు. ఇప్పుడు అట్లా జరగొద్దు అని చెప్పేసి మీరు ఇది టైట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే దేనికి చేస్తున్నారు అనేది కొంచెం క్లారిటీ. ఇప్పుడు ఈవెన్ మీరు అన్నట్టు రామేశ్వర్ బండలో 1732 ఇల్లు కట్టాం మేము. దాని మీద కూడా చర్య తీసుకోండి. దీంతో పాటే అది కూడా ఇప్పుడు ఒకవైపు ఏమో మొత్తం మన జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 9,12,000 అప్లికేషన్లు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఎల్టూనే అంటే స్థలం లేకుండా ఉన్న 9 లక్షలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపితే దాదాపు 1,00,000 మనకు ఖాళీ ఉన్నాయి. ఇంకొకటి అమ్ముకున్న ఎవరైనా అమ్ముకుంటే కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, ఇమీడియట్గా రద్దు చేస్తాం, వాళ్ళని పంపిస్తాం, కొత్త వాళ్ళని. ఓకేనా? ఇంకొక డౌట్ సార్, ఇది మా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కొందరు ఇంకా ట్యాక్స్ కట్టినామని అంటున్నారు. ట్యాక్స్ కడుతున్నాం, ఉండకుండా ఉండాలి కదా, ఫిజికల్గా కూడా ఉండాలి. అందరు కట్టేస్తారు వెళ్ళిపోతే కాదు కదా, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. గవర్నమెంట్ ఉన్నది అందుకే. అంటే మీరందరూ కూడా పాత ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి మేము ట్యాక్సులు కడతాం, ఇవి కడతామంటే ఇవి పాడైపోయేటట్టు ఉండాలి. గవర్నమెంట్ అట్లాంటివి చూడదు. ఖచ్చితంగా మేమందరం వ్యవస్థ ఉన్నది ఎందుకంటే మంచిగా ఉంచడానికి. ఫర్ సపోజ్ సార్ ఇప్పుడు నాకు కుదరలేదు, మా చెల్లె వాళ్ళని ఇట్లా పెట్టొచ్చా సార్? అట్లాంటి ఏముంది, ఇదే ఉండాలి అంతే, ఎవరోగలు ఉండాలి. मैं आपको सारी तफसीलात सुनाता हूं। मैंने हूबहू तेलुगु में उन्होंने जो कहा मैं आपको हिंदी में मैं आपको सुनाऊंगा।
मेरी बात गौर से सुने, इसे फॉरवर्ड ना करे, स्किप ना करे, पूरा मुकम्मल सुने, वरना आपका पट्टा हो सकता है कैंसल। आपका दिया हुआ घर जो 3 साल से पट्टा लेके 1 साल, घर लेकर 2 साल से जो पापड़ बेल रहे हैं, गरीब आवाम के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, चाहे वो सरकारी हुक्मरान हो या सरकारी नौकर हो या कोई भी हो, ये जो है हाउसिंग ऑफिसर जो कह रहा है कि हम बराबर जो है ये इंक्वायरी को आएंगे, और देखिए किस महीने में जो है ये लोग जानबूझकर जो टारगेट करने का काम करे। आखिरकार क्या ये मार्च के यानी ये रमजान के महीने में ये इंक्वायरी के लिए आए और ये कहते हैं कि हम जो है यहां पर कई सारे मकान उन लोगों के इंक्वायरी को आए, पहले उनकी इंक्वायरी को आए जो लोग यहां पर 2 साल से आज तक वो अपने मकानों को ऑक्यूपाई नहीं करे, आज तक आइच नहीं वो लोग। पहले हम उनके मकानात को हम कैंसल करेंगे, पहले उनको हम नोटिस चिपकाएंगे उनके दरवाजे के ऊपर, और वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आकर अगर जवाब हमको बहेंगे कि 10 दिन के अंदर आकर जो है आप अपने घर के अंदर रह जाओ। अगर नहीं रहने की शक्ल में फिर से हम वो आएंगे, आकर फिर चेक करेंगे हम, अगर वो हम वार्निंग देने के बाद, नोटिस देने के बाद भी, उसके बावजूद भी अगर वो घर अपना आकर नहीं रहे तो हम उनके घर को कैंसल करके, इन्होंने कहा ये बात हमें एनएनसी न्यूज को समझ में नहीं आई, अवाम को क्या समझ में आएगी, तो हम आपसे पूछते हैं। ये हाउसिंग ऑफिसर पूछता है, हाउसिंग ऑफिसर कह रहा है कि मुझे पटानचरू में 22,000 लोग जिसके पास जमीन नहीं है, गरीब है, उनको ये कैंसल करके घर उनको तो भी देंगे। क्या ये पटानचरू वालों ने बनाया? ये कहां तक की दुरुस्त है ये बात? क्या ये हाउसिंग ऑफिसर क्या पटानचरू का नौकर है या पटानचरू के एमएलए का नौकर है? वो पटानचरू का एमएलए भी आवाम का नौकर है और ये भी हाउसिंग ऑफिसर भी आवाम का नौकर है। आखिरकार 22,000 चिल्लर पटानचरू के ही लोग क्यों? ये क्यों नहीं कहता कि तेलंगाना के अंदर 50 लाख लोग एप्लीकेशन डाल चुके हैं, हर वो गरीब आवाम को सहूलत मिले, ऐसा कहना चाहिए था। वो भी कहां तक ठीक है एक कॉन्स्टेंसी के बारे में टारगेट करना, और ये गरीब ऑफिसर, ये जो है हाउसिंग ऑफिसर कह रहा है कि अगर आप लोग उसको ऑक्यूपाई नहीं करोगे, उसके बाद हम कलेक्टर के पास या नोटिस भेज के करके आपका पट्टा कैंसिल करके और दूसरों को दे दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आपके मकानात के अंदर अगर कोई भी, पहले तो कहा कि जो लोग बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं करे, जिस तरह के हम इससे पहले की न्यूज भी चलाए थे, उसके अंदर 247 यानी पहले से जो हम न्यूज चला रहे थे बुलाकर पट्टे देने का काम जो कर रहे थे मिसिंग पट्टे का, तो तकरीबन 11-1200 थे, उसमें से आज बजे 247 लोग। कुछ पट्टे कैंसिल भी हुए, जो महेश्वरम के अंदर जो केसीआर डबल बेडरूम कैंसिल करके उन्हें इंदिरम्मा इल्लू के नाम पे दिया गया। आखिरकार ये हाउसिंग ऑफिसर यानी पट्टे कैंसिल करके गरीब आवाम के जो दिए हुए हैं, जो 3 साल पहले पट्टा दिए, इंक्वायरियां हुए, 8 साल के बाद मकानात मिले, मैं मानता हूं इसमें 20-30% अमीर लोग भी है, डबल मकानात वाले भी है, इनके कैंसिल हो, गरीब आवाम को डराने का काम बिल्कुल ना करे हाउसिंग ऑफिसर। और हमारे हाउसिंग ऑफिसर के एमडी गौतम साहब को भी चाहिए कि बार बार ऐसे ऑफिसरों को भेजकर केसीआर नगर या कोल्लू डबल बेडरूम में हो या टोटल तेलंगाना के अंदर डबल बेडरूम जो दिया गया, वहां पर ऐसे धमकी देना, ऐसे वार्निंग देना और माहौल को बिगाड़ना, पैनिक करना, इसे नहीं करना चाहिए। कि गौतम साहब को सारे अपने होदा वालों को और अपने ऑफिसरों को समझाए। और इन्होंने कहा कि जो लोग नहीं आए उनके भी करेंगे, और जो लोग जो है हफ्ते में आ रहे जा रहे उनके भी करेंगे, और जो लोग अमीर लोग हैं, जिस तरह हम इस पिछली बार आवाज उठाए अमीर लोगों का पट्टा कैंसिल हो, जो अमीर है हम उनके बारे में भी सोचेंगे। तो सबसे पहले किनके बारे में सोच रहे? अभी इंक्वायरी को आएंगे, बोले कि जुमेरात को आएंगे, मार्च के बाद आएंगे, ये मार्च के बाद आएंगे या मार्च में आएंगे या रमजान में आ जाएंगे, ये कोई भी क्लैरिफिकेशन इसके अंदर इन्होंने नहीं दिया। ये वहां के कुछ चमचे, कुछ लोग मिलके आपस में बात करके जो है मैं करा देता हूं, मैं करा देता हूं, मैं बड़ा, तो वहां पर गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत होने वालों के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो नए नए जो है, नए नए शिकारी, नए नए भिखारी, ऐसी बात हो रही। और उन्होंने कहा हाउसिंग ऑफिसर ने
कि जिसके घर में सामान नहीं होगा, सामान बिल्कुल नहीं होगा, 2 साल से रेस्पॉन्ड नहीं करे, 2 साल से उन्होंने ना घर को आए रेस्पॉन्ड करे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना आए ना पट्टा भी लिए, जिनके फोन नंबर मौजूद नहीं थे। तो ऐसे लोगों के मकानात को हम देखेंगे, देखकर जो है उसे हम नोटिस देंगे। 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर अगर घर ऑक्यूपाई नहीं करे तो हम जो है उनके घर को सील करेंगे, सील करके पट्टा कैंसिल करके दूसरे लोगों को जो है हम वो पट्टा इशू करेंगे। ये कहां तक सही है? आखिरकार गरीब आदमी और कितना गरीब बनेगा? ये गवर्नमेंट ऑफिसर भी गरीब को धमकी दे रहे हैं। आपका दोस्त मैं शेख अब्दुल रशीद। एनएनसी न्यूज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, सत्यमेवा जयते।